So, hi everyone, myself Nidul. In this video, we are going to start with the topic of Class 8 Science, chapter number 14, which is electroplating. Let me write the name of the topic electroplating. So, as you can see, I have written the name like this electro, and then I have written plating. So, can anyone tell me that why have I written the name like this? I have written the name like this because I want to tell you the meaning. So, firstly, what is the meaning of electro? Electro means electricity. Electro means electricity, and plating means covering. So, it is a process of covering a metal. इसकी definition दिखाता हूँ मैं आपको. So, electroplating. Electroplating. The method of coating the metal surface with a thin layer of superior metal with the help of electricity. It is called electroplating. मतलब electroplating is a method of coating the metal surface with a thin layer of superior metal with the help of electric current is called electroplating. Means like if I have Cu, I have copper, या फिर I have iron Fe, I have to coat I have Fe means iron. Iron is reactive with food. So we cannot store the food items in Fe. But iron is also very strong. So what we do? We take tin. As we know that tin is not much reactive with food as compared to Fe. But and Fe is a strong Fe is a strong Fe has a strong capacity to hold, means it does not break easily. So what we do, we take like if it is a iron piece, we coat it with tin using what? Using electricity या फिर electric current. So this is known as electroplating. This is the topic of electroplating. मतलब electroplating की definition है आपके सामने ये. तो अब वो देखते हैं क्या बोलते हैं इसको. Now let us see the diagram. So now let us see the diagram. कि what is how is electroplating done? So what are we taking? So मतलब जब this diagram is always helpful when a question comes define electroplating. This diagram is the best. आप ये diagram बनाओ फिर आप इसको explain करो. Explanation के लिए भी points मैंने आपको नीचे दे रखे थे. Total 8 points including one of electroplating which we have already done. So let us see. So here you can see here is the one long line and one is short line. So long one is a positive terminal and short one is a negative terminal. Okay. अब फिर एक की है. की क्या? की को और क्या बोलते हैं? की को हमने बोल रहा था और क्या? स्विच. की को हमने बोला था और क्या? स्विच. तो वो हमारे पास वहां पे स्विच आ गया है ना. अब बचा क्या? ठीक है स्विच है. फिर अपने को बैटरी. अब यहाँ पे हमने दो रॉड्स ली हैं. एज यू कैन सी हियर देयर आर टू रॉड्स. वन ऑफ दिस रेड मींस ब्राउन कलर एंड वन इज ऑफ सिल्वर कलर. सो सिल्वर कलर वाली रॉड जो है वो आयरन स्ट्रिप की है और जो ब्राउन कलर वाली रॉड है वो कॉपर की है. अब हम पढ़ते हैं एक टॉपिक. इसी का टॉपिक है एनोड. एनोड एंड कैथोड. जब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है एनोड और कैथोड. ये क्या होते हैं? दो चीजें और होती हैं. वो होती है कैटायंस एंड एनायंस. दे आर कैटायंस एंड एनायंस. सो कैटायंस एनायंस क्या होती हैं? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. लेट मी टाइप इट हियर. नोड के साथ यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? सो मैंने लिख दिया यहाँ पे एनोड और वो वाला. सो कैटायंस. अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोनों की स्पेलिंग.
एनोड और एनायंस, तो एनोड और एनायन में एन एन तो सेम है, और फिर कैथोड और कैटायन में कैट सेम है। तो इनको अब आइडेंटिफाई कैसे करें और ये होते क्या है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आयंस। आयंस आप सबको पता है कि इस टॉपिक का पहला, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन था वाटर आयंस। जब हम किसी भी मेटल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपनी आयंस में ब्रेक होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो यहाँ पे वही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। अब यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, मीन्स कैटायन जो है वो पॉजिटिव आयन है और एनायन जो है वो नेगेटिव आयन है। ठीक है, अब इनको हम समझे कैसे कि कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। तो जब आप कैटायन की स्पेलिंग को देखेंगे तो इसमें आ रहा है टी। टी को जब अपन कुछ ऐसे बनाते हैं तो ये कुछ प्लस जैसा बन जाता है ना, तो मीन्स कैटायंस पॉजिटिव है। और फिर जब आप एक लर्न कर लोगे तो आपको दूसरा लर्न हो ही जाएगा ऑब्वियसली। क्या दूसरा क्या लर्न हो जाएगा कि जो एनायंस है वो अपनी नेगेटिव है, तो यहाँ पे एनायंस नेगेटिव, कैटायंस पॉजिटिव, एनायंस नेगेटिव। और फिर ये एनोड और कैथोड क्या है, एनोड एंड कैथोड व्हाट आर दीज। सो इलेक्ट्रोड्स, अब आप बात आती है इलेक्ट्रोड्स की, तो इलेक्ट्रोड्स में कुछ नहीं बताऊंगा ज्यादा, बस आप समझ लो कि इलेक्ट्रोड्स, तो जो कॉपर, जो इसमें से जो है ना, ये जो कॉपर की रॉड है ना, हम इसको एनोड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, मतलब ये। अब एनोड क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो अब जब देखो हम नाम लर्न कर सकते हैं तो हमें ये भी लर्न हो जाने चाहिए, मतलब आपको इसको खुद ही लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो एनायंस तो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं और एनोड पॉजिटिव होते हैं, कैथोड नेगेटिव्स होते हैं और कैटायंस पॉजिटिव होती हैं। तो इतना समझ लो, बस इतना याद कर लो, हो जाएगा, इतना ही आता है पेपर में बस। अब देखो ये जो बैटरी है, बैटरी यहाँ पे टेकन, हाँ ये बैटरी है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं आयंस, यहाँ पे बन रहे हैं आयंस, यहाँ बन रहे हैं आयंस। अब आयंस आपको पता है कि क्या होता है कि ये जो है ना, ये इसमें एटम्स होते हैं, इसमें होते हैं एटम्स, और उसमें से निकल के बनते हैं आयंस। और ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो क्या होगा, इसमें से एटम्स निकल के कॉपर सल्फेट में जाके आयंस बनेंगे। फिर जब आयंस इस पे जाके लगेंगे तो वापस वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जो इन पे जो जो इलेक्ट्रोड्स पे जो चीज रहेगी वो आयंस नहीं, वो एटम रहेंगे, आयंस नहीं एटम रहेंगी। ठीक है ना। अब हम इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन दिस, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने पढ़ लिया था। फिर अब आता है फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से जो मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ आपके फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ से सेकंड पॉइंट होगा, पढ़ते हैं, चलो 2 पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, मतलब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। व्हेन कॉपर सल्फेट को हम H2O मतलब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इट फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस। कौन सी होती है, कॉपर आयंस। कॉपर आयंस को क्या बोलते हैं हम, कॉपर आयंस को मतलब पॉजिटिवली चार्ज जब आयंस होती है उनको हम बोलते हैं कैट आयंस। एंड नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयंस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर Cu पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और SO4 पे माइनस चार्ज होता है। ये आपके इसमें नहीं है टॉपिक में, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं जो भी बोल गया, बस आप इतना ध्यान कर लो कि जब भी हम CuSO4 को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस में बनता है और नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयंस में टूटता है। तो इतना इतना समझ लो बस, बहुत है इतना। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं अपन को, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, अब आता है पॉइंट नंबर 2। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन था हमारा, जैसे ये बीकर है, इसमें कैटायंस वगैरह बन गए। फिर जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पास करे थे अपन, इलेक्ट्रिसिटी
देखो यहाँ पास करें ना अपन बैटरी से की का स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी, तो वही वाली बात आ रही है वहां पे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू द सॉल्यूशन द कैटायंस, कैटायंस कौन सी होती है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऊपर वाले केस में कौन सी थी, कॉपर आयंस, कॉपर आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड, कॉपर आयंस कैथोड, कैथोड क्या था, इलेक्ट्रोड था, कैसा था, माइनस वाला इलेक्ट्रोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाती हैं, और एन आयंस सल्फेट आयंस, मतलब एन आयंस कौन सी थी, सल्फेट आयंस थी, और सल्फेट आयंस कैसे कैसे कौन सी चार्ज आयंस थी, वो थी नेगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है। मूव टुवर्ड दी एनोड, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि जो कैथोड होता है, क्या बोलना चाह रहा है, सॉरी, ये अपन को यूं बोलना चाह रहा है कि जो कैथोड होता है, कैटायंस, सॉरी, कैटायंस, कैटायंस जो होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, वो जाते हैं कैथोड की तरफ, वो जाते हैं कैथोड की तरफ, और जो एनायंस होते हैं, जो एनायंस होते हैं, राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ, जो एनायंस होते हैं वो जाते हैं एनोड, एनोड की तरफ, कैथोड कैटायंस कैसी चार्ज आंस होती हैं, कैटायंस होती है पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनायंस नेगेटिवली चार्ज आयंस, और एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है, समझ में आ गया, चलो बढ़िया। फिर है, फिर चौथा पॉइंट है, एन अब जो, अब क्या था, वो थे कैथोड, वो क्या थे, तो कैथोड थे वो, और एक एनोड था, है ना, कैथोड और एनोड थे, एनोड ही थे ना, कौन कौन से थे वो पढ़े एक बार जरा, ऊपर चल के थोड़ा सा, कैथोड मतलब आयरन स्ट्रिप और एनायन और कॉपर स्ट्रिप। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों के ऊपर क्या क्या होता है, तो इन दोनों के ऊपर क्या क्या होता है, चलो देखते हैं, सॉरी, सॉरी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई बीच में। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, द कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है के एल और एम, इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे आपको नहीं बताऊंगा मैं ज्यादा, इससे इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज शेयर, गेन लूज शेयर, इससे जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि कॉपर के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, सॉरी कॉपर के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, तो वो इस KLM से ही बताया जाता है, इसमें क्या होता है नहीं बताया, चलो अभी आप बोलोगे क्या पढ़ाए जा रहे हो, उसमें एक तो गेन होते हैं, एक लूज होता है, बस इतना ही बताऊंगा, गेन लूज और शेयर। तो कैथोड पे क्या होता है, तो कॉपर आयंस, आयंस मतलब अभी वो उस पर नहीं लगी हुई, अभी उस पर बाहर है वो, कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कॉपर आयन जो होती है, मतलब जो आयरन स्ट्रिप है वो, जो आयरन स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप वो कॉपर आयंस को ले रही है अपनी तरफ, सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट उनको दे रहा है ये ले रही है, एंड फॉर्म कॉपर एटम्स, और फिर वो क्या बनाने, मैंने क्या बोला था आपको, एटम्स निकल के बनेंगे आयंस, और फिर आयंस निकल के बन जाती हैं वापस से एटम्स, तो ये इस पे एटम्स ले लेगा अपने ऊपर वापस से, मतलब वहां से एटम्स बन के निकले थे कहाँ से, एनोड से, मतलब कॉपर स्ट्रिप से एटम्स बन के निकले थे, सोल्यूशन में आयंस बने, और फिर वापस से जब वो आयरन स्ट्रिप पे चिपक गए तो वहां पे क्या बन गए, वो एटम्स। तो ये थी कैथोड वाली कहानी। अब हम बढ़ते हैं एनोड की कहानी की तरफ। एनोड, द सल्फेट डू नॉट गेट डी ऑक्सीडाइज, आप इस वाले पॉइंट को छोड़ दें, डू नॉट गेट डी ऑक्सीडाइज, कोई मतलब का नहीं पॉइंट, यहाँ से पढ़े, द कॉपर एटम्स, द कॉपर एटम्स इन द कॉपर प्लेट, इसको भी छोड़ दे, कॉपर एटम्स, the copper atom lose electrons to form copper ions which goes in the sulfate solution। क्या होता है एट एनोड, अब एनोड मतलब कॉपर स्ट्रिप पे क्या होता है, कॉपर स्ट्रिप पे कॉपर एटम्स लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, मैंने क्या बोला था, वापस बात को दोहरा रहा हूँ, एटम्स बन रहे हैं आयंस, फिर आयंस वापस बन रही हैं एटम्स, तो हमने यहाँ वाला, सॉरी 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 वेरी मच,
तो हमने वाला केस डिस्कस करा था कि यहाँ वाला केस हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ से एटम्स निकल के आयंस बने, आयन से एटम्स बने। अब हम यहाँ वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, उल्टा लिखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ेंगे। Copper atoms loses electrons to form copper ions which goes into the sulfate solution. Copper atoms lose electrons to form copper ions which goes into the sulfate solution. मतलब कॉपर स्ट्रिप ने क्या किया, एटम्स लूज किए, वो गए सल्फेट सोल्यूशन में, मतलब CuSO4 में बन गए आयंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और फिर वो उस पे जाके क्या बन जाएंगे, उस पे जाके फिर वो वापस से एटम्स, उस पे जाके वापस से वो एटम्स बन जाएंगे। फिर दस वी सी दैट को भी काट देना, दस द एनोड, फिर अब दस द एनोड, अब कौन सा था एनोड, एनोड था कॉपर स्ट्रिप, द एनोड लूजेस कॉपर एटम्स, एनोड कॉपर एटम्स को छोड़ रही है, मतलब कम कर रही है, टू फॉर्म कॉपर आयंस बनाने के लिए, एंड द कैथोड गेन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉपर आयंस, और कैथोड एक इक्वल नंबर आयंस को गेन कर रहा है टू फॉर्म कॉपर एटम, कॉपर एटम्स बनाने के लिए। Therefore, the anode slowly dissolved in the solution while a layer of copper get deposited on the cathode. एनोड पानी में घुल जाता है, मतलब पानी में नहीं घुल जाता, पानी नहीं डाल रहे अब आप, तो उसमें किस में घुल जाता है, वो CuSO4 में घुल जाता है, और फिर वहां पे और जो कैथोड है उस पे एक लेयर ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो जाती है। फिर द सल्फेट आयन डू नॉट टेक पार्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन। अब जो सल्फेट आयंस थी ना, SO4 आयंस, SO4, वो इस केमिकल रिएक्शन में कोई भी पार्ट नहीं लेती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, इसमें कोई पार्ट नहीं लेती है ये। Thus, the copper get transferred from the anode to cathode and forms a reddish brown layer over the iron strip. तो जो कॉपर है वो एनोड, मतलब कॉपर स्ट्रिप से आयरन स्ट्रिप पे चला जाता है, और एक रेडिश ब्राउन लेयर ओवर द आयरन स्ट्रिप बना लेता है, रेडिश ब्राउन लेयर एक बना लेता है। सो ये आज का हमारा एक टॉपिक था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत मतलब मैंने इसको बहुत एफर्ट्स के साथ बनाया है, ये आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ इसको अच्छे से देखना। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में है, तो ज़्यादा लर्न मत करना, बस इसको थोड़ा एक दो बार दिमाग में बैठा के 2-3 बार पेपर पे लिख लेना, आपको अच्छे से, बिल्कुल मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ, आपको लर्न हो जाएगा ये। तो बस आज इतना ही, इन नेक्स्ट वीडियो वी वुड स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।